Okay, good morning students. Yesterday we have started the third chapter of history, that is nationalism in India, and we have completed the first portion of the chapter. In that first portion what we have discussed? We have discussed about the impact of First World War on India and how it converted Indians to anti-colonial. Okay? And I have already told you that like in Europe, there was a concept of nation state among the people. When they know about the nation state, then they started the revolt of nationalism. But in India, when people tired with the anti-colonial feeling, then they started the national movement. This I have already told you now. Then we have discussed in first portion about the Rowlatt Act. Okay. Plus we have discussed about the came of Mahatma Gandhi in 1915 and about Satyagraha, the idea of Satyagraha. If the truth is justful, then we should raise the internal consciousness of the oppressor, suppressor. Then we should convince that person about the truth. No need to use the non-violent method. Okay? Violent methods. Then we have discussed about the Black Act and Rowlatt Act in 1919. Against that act also Mahatma Gandhi started the Rowlatt Satyagraha. Before that in 1916, 17 and 18 continuous we have seen the three Satyagraha movement of Mahatma Gandhi in Champaran, in Kheda and again Ahmedabad. And that movement was successful to some extent. That's why Mahatma Gandhi decided to start a worldwide movement of Rowlatt Satyagraha. Okay, but we have seen that movement is started with the idea of non-violence, but it turns to the violent, and we see the tragedy of Jallianwala Bagh in Amritsar, Punjab. Okay, after that Mahatma Gandhi closed that movement, Rowlatt Satyagraha, and again started a new movement, that is non-cooperation movement with Khilafat movement. In Khilafat we have seen the role of Muhammad Ali and Shaukat Ali brothers. Okay? And at last we have seen the idea of non-cooperation. What is the idea of non-cooperation? That not to cooperate with the Britishers. Britishers are established in India because of the cooperation of Indians, and when we will stop cooperating the Britishers, then they will ultimately went back and we got our Swaraj. Till that we have discussed. Today we are starting the second portion, that is different strands within the movement. Different strands within the movement means different notions of the movement, different ideas of the movement. इसमें अपन ये देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग लेवल्स जो थे सोसाइटी के, जो अलग अलग कैटेगरीज थी इंडिया की, उन्होंने जो है आइडिया ऑफ सत्याग्रह या आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन या आइडिया ऑफ अपन कह सकते हैं स्वराज को उन्होंने अपनी फैसिलिटी के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से रीडिफाइन कर दिया, उसके नोशंस चेंज कर लिए. ठीक है, स्वराज सब चाहते थे, पर जो जिस लेवल पे परेशान था उस लेवल पे छुटकारा पाके स्वराज पाना चाहता था, जिसके वेरियस एग्जांपल्स देखेंगे. सबसे पहले अपन देखेंगे द मूवमेंट इन द टाउन्स में जो है ये मूवमेंट किस तरीके से, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ ना, वो किस तरीके से टाउन्स में स्टार्ट हुआ. लोगों ने स्वराज के आइडिया को, नॉन कॉपरेशन के आइडिया को टाउन पीपल ने किस तरीके, शहरों के लोगों ने किस तरीके से ले गया. तो इसमें अपन देखेंगे कि शहरों में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में किसने पार्टिसिपेट किया? मिडिल क्लास ग्रुप्स ने. सबने पार्टिसिपेट किया, पर मेजर पार्टिसिपेशन किसका था? मिडिल क्लास पीपल्स का, स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, लॉयर्स का, डॉक्टर्स का. तो किस तरीके से उन्होंने नॉन कॉपरेट करना शुरू किया? स्टूडेंट्स ने जो ब्रिटिश स्कूल्स थे वहां जाना छोड़ दिया, टीचर्स ने पढ़ाना छोड़ दिया, जो काउंसिल में मेंबर्स थे उन्होंने जो है काउंसिल में अपना जो पोस्ट था वो छोड़ दिया, लॉयर्स ने प्रैक्टिस छोड़ दी, लोगों ने जो है चीजें, ब्रिटिश जो थिंग्स थी, गुड्स थी, वो खरीदना छोड़ दी. अब इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखेंगे. एक तो अपन ये देखेंगे किस तरीके से नॉन कॉपरेशन हुआ टाउन्स में, तो ये सारी चीजें अपन ने कवर की. फिर सेकंड क्वेश्चन इसी पॉइंट में बनेगा कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या आया. ये बाद में लिखना, जब मैं रीड करवाऊंगी तब लिखवाऊंगी क्वेश्चंस. इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या आया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का टाउन्स में, ये क्वेश्चन बनेगा. तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट अपन ये देखेंगे, जो ब्रिटिश ट्रेड था वो ऑलमोस्ट हाफ हो गया. जो पहले अपन देखेंगे 102 या 107 करोड़ या मिलियंस जो ट्रेड हो रहा था, वो बिल्कुल 51 या 52 लेवल पे पहुंच गया. तो ऑलमोस्ट हाफ ट्रेड हो गया इंडियंस के
कॉपरेट न करने से या बायकॉट करने से ब्रिटिशर्स के बिजनेस पे, ट्रेड पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट आया। ठीक है, प्लस फिर अपन आगे जाके देखेंगे कि इस मूवमेंट्स में जो है कहाँ लेकोनास, क्या चैलेंजेस रह गए, क्या प्रॉब्लम्स रह गए कि वो टाउन में आगे जाके अनसक्सेसफुल हो गया और मूवमेंट को विड्रॉ करना पड़ा टाउन में। तो अपन ये देखेंगे कि स्टूडेंट्स ने तो एक बार स्कूल छोड़ दिया, अब वो पढ़ने के लिए जाएगा। टीचर्स ने जॉब छोड़ दी, जॉब छोड़ के कितने दिन घर पर बैठेंगे, अर्न करने के लिए कहाँ जाए। लोगों ने ब्रिटिश गुड्स, ब्रिटिश जो क्लोथ्स वो खरीदना छोड़ दिया। एक बार तो छोड़ दिया, एक बार खादी खरीदना शुरू कर दी। बाद में वो खादी क्या पड़ी, उनको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ी। जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियल गुड्स लॉट में बन के आते थे वो चीप रेट में मिलते थे, और इंडियन जो हैंडमेड खादी थी ना वो क्लोथ बहुत ज्यादा महंगे पड़ते थे। तो कुछ समय तो लोगों ने मैनेज किया, पर धीरे धीरे लोगों की लाइफ क्या है, टफ होने लगी, और उन्होंने जो है वापस स्टूडेंट्स ने स्कूल ज्वाइन कर लिया, टीचर्स ने अपने काम करना, पढ़ाना शुरू कर दिया, लोगों ने वापस फॉरेन गुड्स खरीदना शुरू कर दिया। तो अल्टीमेटली जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था धीरे धीरे स्लो डाउन हो गया या अनसक्सेसफुल हो गया। तो ये इस पोर्शन में 3 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से बायकॉट किया, उनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या आया और क्या चैलेंजेस रहे या मूवमेंट विड्रॉ क्यों हो गया। फिर देखेंगे मूवमेंट इन द कंट्री साइड्स, या फिर अपन कह सकते हैं विलेजेस, जो रूरल एरियाज होते हैं वहां पे मूवमेंट किस तरीके से लिया। तो यहाँ पे 2 अपन एग्जाम्पल पढ़ेंगे, पीजेंट्स का और ट्राइबल कम्युनिटीज का। पीजेंट्स में अपन देखेंगे अवध के पीजेंट्स। ठीक है, अवध में जो पीजेंट्स के लीडर थे वो थे बाबा रामचंद्र, जो कि एक सन्यासी थे और वो पहले एक इंडेंजर्ड फिजी रह चुके थे। फिजी में इंडेंजर्ड लेबर रह चुके थे, यहाँ बॉन्डेड लेबर ले चुके थे। पहले क्या थे, इंडिया से क्या करते थे, यूरोपियंस, ब्रिटिशर्स जो है लोगों को यूरोप में ले जाते थे। प्लांटेशन में बहुत ज्यादा उनको लेबर की जरूरत होती थी, तो वो लेबर की जब डिमांड वहां से पूरी नहीं होती थी यूरोपियन कंट्रीज से, तो यहाँ से बंधुआ मजदूर, बॉन्डेड लेबर बना के ले जाते थे। मैंने आपको लास्ट ईयर अफ्रीकन का वो अपन ने पढ़ा था, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, स्लेव्स ले जाते थे। तो उस तरीके से बंधुआ मजदूर यहाँ से ले जाते थे, जो कि होते इंडिया के थे। ठीक है, जिनके फोर फादर्स इंडियंस थे, बट वहां जाके वो फिजी में कन्वर्ट हो गए। तो वो जो बाबा रामचंद्र थे उनके फोर फादर्स कहाँ से बिलोंग करते थे, इंडिया से, बट वो फिजी में जाके इंडेंजर्ड लेबर बन गए थे, और वो वापस इंडिया लौट आए और सन्यासी बन गए। और आगे जाके जब कंट्री साइड में पीजेंट्स मूवमेंट हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसके लीडर बन गए बाबा रामचंद्र। अब पीजेंट्स ने जो है किस तरीके से इस मूवमेंट को लिया, पीजेंट्स को लगा कि नहीं, ये जो मूवमेंट है हमको किस तरीके से स्वराज दिलाएगा जब हमारे रेवेन्यूज कम हो जाएंगे। प्लस क्या, उस समय पीजेंट्स से जो है कंट्री साइड में बेगार कराया जाता था। बेगार अपन कह सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वर्क, जबरदस्ती जो बड़े बड़े तालुकदार, लैंडलॉर्ड्स होते थे ना, वो पीजेंट्स को अपने घरों में या कहीं पे भी बिना पेमेंट के काम करवाते थे, तो उसको बेगर बोलते हैं या बेगार बोलते हैं। ठीक है, तो पीजेंट्स इन सब चीजों से धीरे धीरे अवध में परेशान होने लगे, उनको रेवेन्यू भी कम मिल रहा है, प्लस उनको फ्री ऑफ कॉस्ट काम भी करना पड़ रहा है। तो उनको लगा कि नॉन कॉपरेशन किस तरीके से करें। तो पीजेंट्स, ये जो किसान ही थे ना, वो बड़े बड़े तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के कपड़े भी धोते थे, वॉशरमैन्स भी थे, उनके बाल वगैरह भी काटते थे। उन्हीं में से कुछ लोग जो है नाई भी थे। तो उन्होंने कैसे कॉपरेट करना बंद कर दिया पीजेंट्स ने, उन्होंने उनके ये सारे काम करना बंद कर दिया। एक नया अभियान शुरू किया, नाई और धोबी बंद, मतलब उनका कोई काम हम नहीं करेंगे। और फिर धीरे धीरे जो ये पीजेंट रिवॉल्ट अपन देखेंगे ये नॉन वायलेंट में कन्वर्ट हो गया, सॉरी वायलेंट में कन्वर्ट हो गया। किस तरह से वायलेंट में कन्वर्ट हो गया, उन्होंने मर्चेंट्स, तालुकदार, इनके जो है हाउसेस पे अटैक करना शुरू कर दिया, और गलत तरीके से गांधी जी के नाम को यहाँ पे रेस किया गया कि गांधी जी ऐसा कह रहे करने के लिए, जबकि गांधी जी कभी भी वायलेंस के फेवर में नहीं थे। तो इस तरीके से ये अनसक्सेसफुल हो गया पीजेंट्स रिवॉल्ट या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अवध का। सेकेंड अपन एग्जांपल देखेंगे ट्राइबल पीपल्स। ट्राइबल पीपल्स का आपको याद है तो अपन ने लास्ट ईयर चैप्टर पढ़ा था हिस्ट्री में पैस्टरलिज्म, जिसमें अपन ने फॉरेस्ट एक्ट, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पढ़े थे। इसके ट्राइबल पीपल्स की पूरी जो लाइफ है वो जंगलों पर डिपेंडेंट होती थी। अब इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने उनको जंगलों में जाने से मना कर दी। पूरा चैप्टर अपन ने पढ़ा था, क्रिमिनल्स डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो इन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। इनको लगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं हमसे हमारे राइट्स, हमारे अधिकार, जो बेसिक जो राइट्स है वो छीन रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे इनके लीडर बने अलूरी सीताराम राजू। वो कहता है, वो भी एक ट्राइबल बंदा है, वो कहता है कि मैं भगवान का अवतार हूँ। ठीक है, मेरे को अगर कोई गोली मारेगा तो भी मैं
नहीं मरूंगा और मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ, ठीक है। और वो कुछ अच्छी बातें भी करता है और एट लास्ट वो क्या गलत तरीके से लोगों को उकसाता है। वो भी गांधी जी के नाम को इसी तरीके से लेता है कि ये तब तक जो है ब्रिटिशर्स से हम नहीं जीत सकते जब तक कि हम वायलेंट मेथड नहीं यूज करते। तो अल्टीमेटली जो है ये ट्राइबल पीपल्स का अपन एग्जाम्पल पढ़ेंगे, बाबा गुदान हिल्स, गौरिला वॉरफेयर, गौरिला ट्राइबल्स थे वहां पे, ठीक है। वो भी मूवमेंट धीरे धीरे आगे जाके अनसक्सेसफुल रह जाता है। फिर लास्ट अपन मूवमेंट देखेंगे प्लांटेशन वर्कर्स का मूवमेंट। अभी प्लांटेशन वर्कर्स का अपन एग्जांपल पढ़ेंगे कि इन एरियाज में जो वर्कर्स वर्क करते थे ना, उनको वहां पे बंदी बना के रख दिया जाता था। मतलब उस एरिया से, कन्फाइंड एरिया से वो बाहर जाने की उनको परमिशन नहीं होती थी। बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन में विद परमिशन वो उस एरिया से मूव कर सकते थे, अदरवाइज वो वहां पे कन्फाइंड एरिया में बंदी की तरह काम करते थे। तो जब स्वराज का नारा आया या नॉन कॉपरेशन का नारा आया गांधी जी ने, तो इन लोगों ने उसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया? उन्होंने कहा कि गांधी जी कह रहे हैं कि भाई प्लांटेशन ये छोड़ के फील्ड विदाउट परमिशन चले जाओ, सब अपने अपने विलेजेस पे चले जाओ, सबको वहां पे जमीन अवेलेबल करवा देंगे गांधी जी खेती करने के लिए। और वो विरोध करके वहां से निकल जाते, पर रास्ते में ही पकड़े जाते हैं और उनको बहुत बुरी तरह से पीट कर वापस लाया जाता है। कहीं ना कहीं ये भी अनसक्सेसफुल रह जाता है मूवमेंट। तो आज ये पूरा पोर्शन अपन कवर करेंगे। अब अपन रीड करके कवर करते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट्स घर में देख रहे हैं वो अपने आप रीड करेंगे, जिनको प्रॉब्लम होगी वो पर्सनली पूछ लेंगे। थैंक यू।